પાંચ આજ્ઞાનો પરમાર્થ એબ્સોલ્યુટ દાદા તીર્થમ કરના દિલ મંદિર ભંડારેલી. કયા નંબરનું પદ છે કવિરાજ? જુલાઈ 23, 2006. 5 આજ્ઞા ક્વેશ્ચન્સ. ભૂપતજી સંત પુરુષ, सिलवाना संत पुरुष. कौन आया? विनोद. अरे इतना जल्दी आ गया. अरे क्या आप सिंसियर. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह रखिए, यहाँ रखिए. आज अपना महात्मा, वडील महात्मा सूरज जी ने फरमाया है कि आज 1 घंटा सत्संग 5 आज्ञा के क्वेश्चंस पर हो रहेंगे. आपके कुछ अंदर होंगे तो आप भी निकालने. 5 आज्ञा के ऊपर 5 आज्ञा जनरल, उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रखे हैं. एनीबडी कैन आस्क आउट ऑफ दैट 4. यू कैन ऑल्सो इफ यू गॉट. ज़्यादा होगा हरकत नहीं है. अगर लाए हो तो हमें दे सकते हो. अंदर सब है. यहाँ कुछ है, इसे क्वेश्चन थोड़े आए हैं वो मैं देख लेता हूँ. निकालो पानी. उसके बाद आज्ञा नंबर 1 पर क्वेश्चन. आज्ञा नंबर 2, 1 और 2, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखे. कोई आया नहीं है. कोई नहीं आया है. सो खाली है, ब्लैंक है. जिसको देना है दे सकते हो. 1 नंबर और 2 नंबर पर. अगर न हो, पक्की हो गई हो तो मत देना. समझ गए? प्रणव आई डोंट नो. आज्ञा नंबर 3 पर 5 क्वेश्चन आए हैं. आज्ञा नंबर 4 पर 3 क्वेश्चन आए हैं. आज्ञा नंबर 5 पर 1 क्वेश्चन आया है. आज्ञा नंबर 5 बहुत पक्की हो गई है, लगता है. ठीक है, अच्छा है. तो जैसी जैसी तो ऐसा पूज्य दादाजी 1 कलाक के सत्संग के अंदर सब जवाब आ जावे, ऐसी आपको नम्र विनंती है. अच्छा ठीक है. हम दादाजी से प्रार्थना करते हैं, दादाजी हम शक्ति दे कि ये शॉर्ट प्ले रिकॉर्ड कर दे. लॉन्ग प्ले मत करवाना. ठीक है. दादाजी की शॉर्ट प्ले हुआ करती थी, फटाफट कर देते हैं. और मेरी थोड़ी लॉन्ग प्ले हो जाती है, हम जानते हैं. चलो चालू करें. इट इज इन ऑर्डर. કાઢી નાખો દાદા. દરેક સ્ટેપ જુદા કરેલા છે. ओके. मजा आएगी नहीं? यू ऑल्सो कीप रेडी. यू कैन फ्रेम. अगर आपको इफ यू वांट पेपर यू कैन टेक फ्रॉम हिम टू नोट डाउन. यू कैन गिव पेपर. आप पापा सेक्रेटरी साहब समझे ना, एक्स सेक्रेटरी साहब. पापा आप समझे कि नहीं? हाँ, गवर्नमेंट में सब डिपार्टमेंट खोलना चाहिए. HR रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है ना, उसका एक स्पेशल निकलना चाहिए. नहीं जरूर नहीं लगती. वो अर्जुन सिंह को बोलना. आप बोलेंगे? Too big for me. अर्जुन सिंह है ना अभी तो. HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. ह्यूमन वो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज है ह्यूमन. ह्यूमन रिसोर्स है. Material resource. Which type of material? Inert
or active? Active or inert? Or passive? All of them. चलो 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 अच्छा ये नंबर 1 चलो जल्दी जल्दी ले ले आज्ञा जनरल क्वेश्चन पहला आ गया आज्ञा धर्म सत्संग व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिजल्ट short term and long term of applying the agnyas correctly. This is general question of 5 agnyas. Beautiful question. Question from Manan Vaishnav, age 21, Major. Major Manan Vaishnav. And medical student, right? Then? My brother. Huh? My brother. And you? I'm doing pharmaceutical sales. Pharmacist. Pharmacy in process, right? Pharmaceutical sales. Huh? Pharmaceutical sales, right? Yeah. Sales. Everything. It is a pharmacy. He is going to go to Mukul Bhatt. What is the direct and indirect result, short and long term in the bracket, Jalaben, of applying the agnyas correctly? Dipakanand Swamiji, these are your disciples. You understand? You know that, Guruji. He's your Guruji, no? So now we go there. What are the direct and indirect? What is the result? Short and long term of applying. Beautiful. Short term results of applying 5 agnyas correctly is spontaneous Satchidanand state experience. Spontaneous Satchidanand state experience. Satchidanand, that means Jnana Darshan two put together. Two put together. With simultaneous function, spontaneously, you follow? Spontaneous, simultaneous function, resulting as Anand, Satchidanand, a state that is immediate, direct result, short term and long term, both. Immediate, I say, direct, right? And indirect result is the emanation of the vibrations of that experienced state of being that gets vibrated out on account of the continuity of that resulting aspect of that applicating aspect. You understand? Vibrating part of that state of such a beautiful Sat-Chit Swarup, Ananda vibrations, emanations, fragrance all around, in all the directions, known to humankind, universal and worldwide. Do you understand? That is the indirect. Starting from the inner core of mind, speech and body assembly to the
temple of the sweet home within which that core mind, speech, body, divine body dwells. That beautiful live statue dwells. Divine statue dwells, emanating all that vibrations. First, as a bounden charity towards the nearest and dearest ones, closest. Keeping something in stock for the one that is coming in, and the rest for others. One for that coming in process. You know that. You know. Number two. You have to keep reserve, no? That is also indirect. It automatically remains in stock. It has got such powers. Direct results, sir. So that is the first answer. Short term. For what more? That is over? Sir? Sir, that is over? Is it over? Deepakanand Swamiji? Yes. Or anything more for that? Shall I go further? Can I go to next question? Jalaban? Okay. ઓકે પહેલા પતાવી દેવા પેલું બીજું આપે છે પછી એક એક્સ્ટ્રા આવેલો છે તે તો પહેલું જોવો જો છે કે નહીં લાઈનમાં જશે પછી ઓમ નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ પરમ પૂજ્ય શિખરનું દાદાજીને આનંદના કોટી કોટી સચ્ચિદાનંદ દંડવત પ્રણામ છે. હે દાદાજી, નીચેનું સૂત્ર કૃપા કરીને વિસ્તારથી સમજાવવું વિનંતી કરું છું. આ તો એને જુદું આપ્યું છે. આમાં એક છે દાદા. અચ્છા, અનુભવ જ્ઞાન શ્રેણીમાંથી એક સૂત્ર આપ્યું છે અને એમનું કહેવું એ છે કે આજ આવશે એવું કહેવા માગે છે. તો લેટ અસ સી દેખે. ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં પણ જો બેફામપણું હોય, અગળતો અજાગૃતિ હોય તો સૂક્ષ્મ કર્મ બીજ પડવાની સંભાવના છે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ એ 5 આજ્ઞા આપી છતાં પણ અજાગૃતિને કારણે, પોતાપણાને કારણે, આ કારના પ્રભાવે પોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ તેમ થઈ શકે છે. એમાં પછી જ્ઞાની પુરુષ શું કરી શકે? યસ. એટલે આમાં પણ સૂત્રની સમજમાં એ જ છે કે આજ્ઞા નંબર 1 and 2 એનું ડિરેક્ટ શોર્ટ એપ્લિકેશનનું રિઝલ્ટ આ છે, એઝ વેલ એઝ ઇનડિરેક્ટ સોફ્ટ એપ્લિકેશન બંને. ઇનડિરેક્ટ તો પછી એનો રિઝલ્ટ આવે ઇફેક્ટ ત્યારે સમજાય, પણ ડિરેક્ટ તો કોઝલમાં જ આવશે. તે ખબર નહીં પડે, કોઝલ કોઈને ખબર ન પડે, અને ઇનડિરેક્ટ એ તો ઇફેક્ટ છે. શું? બિકોઝ બિલ્ડિંગ અ પ્રોસેસ starts from subtlest onwards. Do you understand? Anand. It starts from subtlest onwards. Do you understand? Yesterday, same thing talk was going on regarding that mind. Vinod, that's Nidhi's question. Mind and soul relation. You understand? Same thing. Coincidentally, it came out naturally in such a way. I hope Jalaban appreciated. You follow? પણ આ એક
So from subtlest it goes on building up. But at subtlest level it is extremely difficult for one to understand. And therefore it becomes very difficult to understand the pratikaman process that has to get set in as a suit on sight process at that level. That is where we do not understand what does suit on sight pratikaman mean. Data Bhagavan has said suit on sight. We should understand the precise meaning of that suit on sight pratikaman process. It is the direct application, correction application of non-applicant process of Agnya 1 and 2. Simultaneous non-applicant process and simultaneous correction that goes on, which immediately allows simultaneous applicant. That is how it is. It's beautiful, I tell you. It goes on correcting internally. Even yogins, tapasvins, and sannyasins of highest order, for them it is not that easy, sir. And these two Ajnavais, in these times, Dada has made so easy for us. We can understand. Is it not easy, Vinod? I hope you understand. Or no? Agnya 1 and 2, application, short-term and long-term results. Short-term result or long-term result. I hope you understand. You understand? It is great consequences in this very life. Such a life, a flow, continual flow. What do you think the speed of that flow is? Come on. In your medical terms. I don't think it can be in medical terms. Can it be measured in scientific terms? Jalaban. Would the scientists be able to measure it? Very difficult. Huh? Very difficult. Sir, no. In any sort of experiment, Mukul, then where are your studies all these years? Where are you? Hey, where are your studies? Hey, transmissions. Vested. Doctor, no, don't say that. You follow? You understand? This is beautiful. Life, how understand it is. That is how I call very life is the wife. Understand? In the application of Ajna number 1 and 2, as and by way of application of Ajna number 1 and 2, in a direct result, direct application. Do you understand, Suresh? Very life is the wife. And that afterwards wife becomes your dear wife. Otherwise wife will never become your dear wife. She will become wife, okay, relative wife, but not dear wife. Do you understand now? No, it's worth understanding, I tell you. Unless you understand your own mind, speech and body, do you follow? How can you understand wife's life as mind, speech and body? No. As wife. You won't understand. As you won't. Unless you understand your own mind, speech and body, life as wife. Right or not, Pushpa?
Why are you laughing at me? Is it laughable? It is laughable on our own selves. On our own selves, sir. Purush and Prakriti. Ah, Shiva and Parvati. What? Self and Adam and Eve. That is the origin. Ideal. Do you understand? The original teachers, they teach to live out ideal husband and wife relation wise living. That is Shiva and Parvati. Jalabin? This is not a mere story of a garden of Allah or Eden. No. They are the stories of children for Alice in Wonderland. No. They are required. Okay, so long as to charm us. With dublugi and all that. Krishna Bhagwan is Murli is a different Krishna. And the Yogeshwar Krishna is a different Krishna. You follow? Yogeshwar Krishna needs to be understood properly. Pupat. And the Murli Krishna is a Murli Krishna. They are two totally distant personalities. Do you understand? One is the relative and the other is the real. Nisha. Do you follow? The relative is a lila part. And the real is a bhakti part. You understand? And bhakti goes in kirtan. And the lila goes in the rash. Dandiya. The two are required. And Dandiya is also two. સમજી કે નહીં દિલીપને સમજાવો છે અને રમજો પછી હા એ તો કહે છે કે ઓલી સ્કૂલ બંધ કરી દીધી હવે ખાલી એક જ સ્ટુડન્ટ છે મને જ ભણાવે છે તું સમજી ગયો ભાઈ ચાલ આવે શું પાછું રહ્યું સૂક્ષ્મ કર્મ બીજની વાત આવે છે હા સૂક્ષ્મ કર્મ બીજની વાત આવે છે સૂક્ષ્મ કર્મ બીજની કઈ વાત આવી આ બરોબર છે આ તને કહ્યું અજાગૃતિની વાત આવે છે અજાગૃતિ હા એ સમજવાનું છે આજ્ઞાધર્મ નહીં પાળવામાં અજાગૃતિ છે તેની વાત છે અજાગૃતિમાં આપ બને તે સમજી ગયો ને તું એ સમજવાનું છે આ તો આજ્ઞાધર્મ પર ક્વેશ્ચન છે ને બધા યુ ફોલો ઓકે શેલ આઈ ગો ફર્ધર ઓકે નેક્સ્ટ ઓકરીજ ફ્રોમ હેમા મુકુલ ભટ્ટ આ તમારી પાછું કઈથી આવ્યું શ્રીમંત સ્વામી ભગવાન દાદા ભગવાન અમને શુદ્ધ આપની પાસે 5 આજ્ઞા પાળવા માટે તથા 5 આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપો 5 આજ્ઞા ચૂકી જવાથી અત્યારે પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ તથા વારંવાર પાળવાનો તથા શુદ્ધ નિશ્ચય કરવાની શક્તિ આપો પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી અખંડ શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય વાળે તેવી શક્તિ આપો એ તો બરોબર છે જાઓ એ થઈ ગયો તમારો ક્વેશ્ચન પછી નેક્સ્ટ કાઢી નાખું છે તો આઈ નો ઓમ શ્રી દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મને નમો નમઃ ઓમ શ્રી સિમંદર સ્વામી હરિહન તીર્થંકર પરમાત્મને નમો નમઃ ઓમ શ્રી કરુણાજી પ્રત્યક્ષ પ્રગટ જ્ઞાની પરમાત્મને નમો નમઃ પ્રાતસ્મરણીય અધ્યાત્મ આકૃતિ પરમ પૂજ્ય શ્રી કરુણ દાદાજી પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી નામદારી પ્રણવ અમીનના જય સચ્ચિદાનંદ અને કોટી અનંત કોટી પ્રણામ
જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. હા, હવે આ બધી આજ્ઞા પતી ગઈ લાગે છે. આ જનરલમાં જનરલમાં જ છે. જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ ત્રીજી આજ્ઞામાં જગત નિયંતા તરીકે કર્તૃત્વ ભાવ સંધર્મી તત્વ છે. તે હકીકતમાં તદ્દન યથાર્થપણે થતી સ્વયંભૂ કોન્વર્જન્સ પ્રક્રિયા છે અને તે કરાવવા અનુમોદવાથી પર છે. બીજી બાજુ પહેલી આજ્ઞા વ્યવહાર દ્રષ્ટિ રિલેટિવ પોઈન્ટ અને ત્રીજી આજ્ઞા જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ એકબીજામાં પ્રતિબિંબિત છે. એવી જ રીતે બીજી આજ્ઞા નિશ્ચય દ્રષ્ટિ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ અને ચોથી આજ્ઞા ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ એકબીજામાં તદ્રુપ છે. એવી સમજ મને દર્શન પ્રકાશ પરિણામ સ્વરૂપે ફિટ થઈ રહી છે. હે દાદાશ્રી, આપ કરુણાળ અનુગ્રહ દાખવીને પહેલી આજ્ઞા રિલેટિવ પોઈન્ટમાં જે સ્વભાવગત કરતાપણું છે તે ત્રીજી આજ્ઞામાં જગત નિયંતા તરીકે રહેલા સ્વયંભૂ કોન્વર્જન્સમાં હાજર છે કે નહીં, અને જો હોય તો કઈ રીતે, અને જો ના હોય તો બંને વચ્ચે શું તફાવત છે તેની સમજવા પર કૃપા અને પ્રણવને કૃતજ્ઞ કરશો જી. વેરી એક્સલન્ટ ક્વેશ્ચન. It's a very pertinent and beautiful question. Between Agnya number 1 and Agnya number 3. Beautiful question. Agnya number 1, that is relative. Agnya number 3, that is 2, is also relative. And this question is regarding that. Agnya number 2, that is real. कौन? अभी जा कौन छे? बैसी जा तू. Listen carefully. Agnya number 2, that is real. And Agnya number 4, also that is real related vyavhar. You understand? Yes. Understand? Real, relative vyavhar. Yes. Agnya number 1 and Agnya number 3 is non-doership, related non-doership vyavhar. So this is the difference between the two. A non-doership vyavhar and that is how discharge vyavhar. Do you understand? A non-doership vyavhar is through visarjan, that is through the mother nature, through scientific circumstantial evidences. It is just a happening vyavhar. It is, and therefore it is natural, and therefore it is swayambhu convergential. It is swayambhu convergential. And that too Trikali. Jalaben. That too Trikali. That is how the world is the puzzle itself. You follow? Do you follow? Yes. There cannot ever be any independent pleasure creator of the world as the world being puzzle itself on
perpetually. It was, it is, and it will never be. This way. Swayambhu. And which way? The convergential. Convergential. Right, sir? That's it, simple. Right? Otherwise, fine. That answers your that question, Very good answer. and the other answers the other two cognas. I hope it makes very clear. Very clear. So I can go further. That's better. દાદાજી પહેલી આજ્ઞા અને બીજી આજ્ઞા વિશે ક્વેશ્ચન નતા ને પહેલા હવે આવેલા છે I will take further. છે એટલે હવે But- next is first રવિનાનું શું છે? ના એ બીજા હવે બીજ ત્રીજામાં જાય છે, તો આ એક આ વધારાના એક્સ્ટ્રા આવ્યા છે તો લઈ લઉં જરાક, અને પછી આપણે આગળ જઈએ. દીપકાનંદનો પહેલી ઉપર છે Yes, yes. પણ એ તો બહુ ડિફિકલ્ટ હશે ને. એ તો બહુ જ હશે પણ હવે એમને આપ્યો છે એ બીજીનો અને હમણાં જ આપ્યો છે Sorry for that. એમને હોમવર્ક બરોબર નતો કર્યું હે બીજું બધું હોમવર્ક કરતા કરતા પછી અહીંયા આવીને લખ્યું. એ જઈને લખ્યું. કઈ નહીં લાગવગ ચાલે છે પેલા જયંત પટેલનું લઈ લઈએ ને. જયંતનું બીજા પર છે બીજી આજ્ઞા પર અચ્છા, તો પહેલા લઈએ. ચાલો. પરમ પછી કંદાજીને અનન્ય ભાવે જય સચ્ચિદાન. તમે લાયા છો? પધારો પધારો. આ જગ્યા રાખી જ તમારી હે ને? એક ખાલી થઈ ગઈ. લો, સારું કર્યું. કઈ ગયા હતા તાર? આમાં કઈ ગયા વસંતજી? તમે કાળજી નથી રાખતા એમની? હા, વિતરાગ થઈ ગયા છો કે તમે? નો છે, જરાય ખબર રાખે છે એમની? કઈ છે તે ખબર નથી. કઈ છે? જુઓ હસનભાઈ, આટલું જ. કઈ છો? હરીશભાઈ જોડે બહાર ગયા છે. હા, જો આવીશ એટલે કહી દઈશ. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું દીપક આનંદ છું, એ જ હજી સમજવાની જરૂર છે. તો આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિની યથાર્થ સમજ આપવાની કૃપા કરશો જી.
परम सत्संग क्या है? जी वहाँ लिखा है आपने जनरल सत्संग है। आप आकार के बाबत में अगर दादा भगवान है, हम तो बोलते ही हैं, मानते हैं नहीं, बोलते हैं ही है। तो आप तो है, बोलते हैं, मानते हैं और बोलते हैं। अच्छा, और आपके मार भी है, वो ज्यादा क्लेम कर लेते हैं जरूर। तो आपके अंदर विराजमान दादा भगवान, महावीर भगवान का स्वरूप वित्ता स्वरूप है। वही स्वरूप के नाते से हम वो स्वीकार करते हैं। स्वीकार करो, और वो स्वीकार के रूप में आज ये परम सत्संग बना रहेगा दादा भगवान की कृपा से। सच्चिदानंद। आज सुबह का सत्संग जनरल टॉपिक्स के ऊपर है, जो आज के आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर है। ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, भले हम गुजराती भाषी ज़्यादा है, हमें हिंदी भाषा जानना ही है। सर्वप्रथम हम भारतीय है। बोलो सब, सर्वप्रथम हम भारतीय है। बरोबर? उत्तर वाले भी, दक्षिण वाले भी, पूरब वाले भी, और दक्षिण वाले भी, और पश्चिम वाले भी, सभी कोने वाले भी, सभी प्रदेश वाले के, अच्छे परदेशियों वाले के भी, नजदीक के नजदीक अच्छे परदेशियों हैं, इस डंग वाले भी बड़े अच्छे, ये लंके वाले के बड़े अच्छे परदेसी है। हमें उनका सोना नहीं चाहिए, लंके का सोना हमें नहीं चाहिए। जला जी कहाँ है? हमें लंके का सोना नहीं चाहिए। अपने पास ही सोना है तो क्या? हाँ, बांटने की बात नहीं है, लेकिन जो है उसका आनंद मनाओ। दूसरों का है वो लेने की वृत्ति मत रखो। जिसका है उसको देख को आनंद हो, और कुछ क्या है। जिसके पास नहीं है उसको पूछो क्या है भाई, तो क्या खाना नहीं है? अरे खाना नहीं, क्या क्या हो, मेरे पास है, चलो आप बांट के खाओ, खत्म हो गई बात। अरे भाई कपड़ा तो नहीं है, देखो न फटा हुआ टूटा हुआ है, क्या करूं? अरे आओ आओ आओ, मेरे पास तो 4 है, 4 में से 2 गए, 2 अपन ऑल्टर्न कर, जा जा वहां तक तो दूसरे आ जाएंगे, जा जा जा, चलो आप बांटो। नहीं कर सकते? कर सकते तो पीछे वही महावीर का हाँ देश। गिरिधर ने सबको सहारा दिया। देख छपरा, जिसको छपरा नहीं है उसको सहारा नहीं दे पाता। नहीं निशा बोलती नहीं बोलती, नहीं बोलेगी। हम सब भारतीय, सर्वप्रथम हम भारतीय है, तो बोल सर्वप्रथम हम भारतीय, तो बोल हम सहारा नहीं दे पाते, नहीं दे पा सकते, बोल दे सकते हैं, दे पा जरूर देंगे, जब ऐसी जरूरत पड़ेगी तब बोल जरूर सहारा देंगे। हाँ, उसमें दिलीप की अनुमति लेनी पड़ेगी। नहीं अरे क्या बोलती है, क्या बोलती है? वो सिपाही को भी नहीं अनुमति लेनी पड़ेगी, वो भी मान जाएगी, वो जूती बूती नहीं बोलेगी वो। सच्ची सच्ची પછી મનાઈ લેવાય। अरे आ जाएगी, है? आ जाएगी। अरे वाह,
क्या क्या बोलता है? जरा बहन क्या बताती? हाँ, आज आएगी बोलते हैं, उसका पूरा इंग्लिश सबटाइटल में आएगी। ध्रुवा, तेरी सिस्टर को बता, आज चंदन बाला पूरे इंग्लिश के सबटाइटल, प्रोलॉग वगैरह के साथ, सब कुछ के साथ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आएगी, तो सबको मजा आ जाएगी। और इतने नज़दीक छोटे हैं ना, तो जितने नज़दीक बैठ जाना, तो दूर बैठने की जरूरत नहीं है, तो अच्छी तरह से टाइटल भी पढ़ सकेंगे और पढ़ते पढ़ते अपना हाव भाव के साथ डायलॉग देख सकेंगे और डायलॉग का हाव भाव देख सकेंगे। बड़ी मजा आएगी आपको। उनका बच्चे लोगों का एक्टिंग इतना बड़ा बढ़िया है कि नहीं? तेरे डांस से भी बढ़िया है कि नहीं? सच्ची बता ना, वो बच्चियों का डांस कैसा है बता ना, पायल बता ना, तू बता, है कि नहीं? अप्रिशिएट करती है कि नहीं? हाँ, तो तू भी अच्छे करते रहना। हाँ हाँ, चलो अभी जावे अब। वो आखिर की लाइन क्या थी? सिंह ब्रह्म सकल आधार, आखिर की लाइन बोलो, एक छोटी सी लाइन बोलो, थोड़ी सी लाइन, दो लाइनें बढ़िया महत्व की है। जय दादा भगवान स्वविजयी ब्रह्म प्रगट सिंह नादे रे। लाओ मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। तो आप जब हम पद ललकारते थे, तो जब पुर के नाके थे तो सारा पुर में गुंज जाती थी। समूह स्वरूप तीर्थंकर मूल जय, सच्चिदानंद आचेते, समूह स्वरूप तीर्थंकर मूल जय, सच्चिदानंद आचेते, जय दादा भगवान स्वविजयी, जय दादा भगवान स्वविजयी, स्वभगवान, जय दादा स्वभगवान स्वविजयी, ब्रह्म प्रगट सिंह नादे रे, बोलो, ब्रह्म प्रगट सिंह नादे रे, आछे ते वैष्णव स्वजन जे, दादा गूंजो प्रभाते रे, महात्मा गूंजा प्रभाते रे, आपत पुत्रो गूंजा प्रभाते रे, हाँ आ रही तू, चल। हाँ, सिंह નાદ હોવો જોઈએ, નાદ. પછી આ શું કરી શકીએ? બોલીએ છે ખરા. પણ સિંહ છે ને પછી એની હિંસક વૃત્તિ ખલાસ થઈ જાય છે. જલાબેન શું કહ્યું?
જ્યારે એને બોધ પ્રાપ્ત થાય છે, શું થાય છે? બોધ ઊંડો ઉતરીને એના દિલમાં ઉતરી જાય છે. સિંહ લાયન કિંગ ઓફ ફોરેસ્ટ, અને કેટલો આખા કિંગનો એવરીબડી was fearing of such a king. Everybody, just by the sight. And when the same lion gets due enlightened, इतना स्वबोधित हो जाता है अपना आगे की अद्भुत दिव्य अवस्था से कि जो थोड़ी सी क्षतियों, थोड़ी सी क्या स्लिप्स के कारण ये तू यहां पड़ा, पर अभी ये यहां लग गया, ये धंधे में क्या करता है समझ? तू बूझ, क्या बोलते हैं भगवत, क्या बोलते हैं? बूझ। ए वन का राजा तू बूझ, तू वन का राजा होके प्रदीप्तमान है तो बूझ, अर्थात समझ, दिल में जाने दे। तो वो शब्द अंदर जाते दिल में चले जाते हैं। जैसे शब्द निकलते हैं तो सुनाई पड़ते ही दिल में चले जाते हैं। वो कर्ण श्रवण का धर्म करते अंदर अंदर चले जाते हैं, कर्म अंदर नहीं ले जाते हैं। उसका अंदर आगे का पुण्य अभी उदय में आया, वो फल देने को सन्मुख हुआ और अंदर चले गया। भगवान सन्मुख आए, वचन सन्मुख हुए, चला गया और हिंसक कृत्य से मुक्त हो गया। आयु कर्म नजदीक आ रहा था। देखो आखिर के आयु कर्म में हिंसक कृत्य के साथ जाना, इतना ऊंची अवस्था से गिर के पीछे और गिरते रहना, तो वापस अपनी अवस्था पर आ जाना कितनी है कि नहीं? ये महावीर भगवान थे और कोई नहीं थे। वो सिंह कौन थे? सुन, समझो समझो समझो। अपनी लाइफ में क्या दिखती है? यच तो संभालो, दादा को संभालो, गड़बड़ सड़बड़ हो जावे तब क्या बोलता है? बोलो। बेटी जमा तू अवरी सवरी उदारस्ता मतलावे चढ़े आंबड़ो मन मंडोळे आंबड़ो दादा ने संभालो, त्यादाने संभालो। भले आंबड़ो चढ़े वंटोळे। वंटोळे मीन्स डू यू अंडरस्टैंड? लो, मेरी पायल नहीं समझती वंटोळे। ए भाई प्रणव, कहाँ गया भाई तू? वंटोळे तो समझा, यहाँ जा। क्या तू इतना छोटा सा सिंह की तरह नहीं समझाता? ट्विस्टर ट्विस्टर बोलता है। बोल कटरीना, हरिकेन। अभी समझी? अंदर आते हैं, बोल बोल, अंदर आते हैं इनसाइड, बोल। हाँ, तो तब क्या करना? बोल बोल, गा गा, तब बोल, तब बोल बोल जोर से, तब दादा के बोल बोल, तू बोल के तब दादा ने संभारो, बोल जोर थी,
બોલ, જોર से બોલ. હવે આગળ જઈએ આપણે સત્સંગ આજકા ચાલુ કરે હમ. દાદા ભગવાન પરમાત્મને નમો નમઃ. એ ક્વેશ્ચंस विनोद परम पूज्य दादा श्री दादा भगवान एक पहला गुजराती में पढ़ लूंगा पीछे हिंदी करूंगा. દાદા ભગવાને એક વખત સત્સંગમાં પુરુષાર્થ વિશે કહ્યું હતું કે વસ્તુનું એના સ્વભાવમાં રહેવું એ પુરુષાર્થ છે અને સ્વભાવથી પર થવું એ પ્રારબ્ધ છે. આપસે કૃપા કરી વિસ્તારથી સમજાવશો જી. લઘુત્તમ ભાવે ભૂપતના જય સચ્ચિદાનંદ આપના ભૂપતજી મહાત્મા વર્ય. તમારે ત્યાં દાદા ભગવાનનું વાણી નીકળી હતી ને? હા. આપણા ભુલાભાઈ હતા તારની વાત છે. હા દાદાજી અત્યારે પેલે ડીવીડી બનાવતા છે ને તેમાં બધું. દાદાની હા જૂની આવે કેટલા કઈ સાલની આવે છે? એ 82 થી. બહુ ફાઇન વેરી ગુડ વેરી ગુડ. એ બધી સંભાળીને કરજો. હા ભાઈ, ब्यूटीफुली करजो, कारण कि આ બધો ट्रेजर છે આપણો. ये मेरा बहुत बड़ा ट्रेजर है विनोद. ये दादा भगवान का जो यहाँ दादा भगवान का सबसे बड़ा खजाना ट्रेजर ये काल का कलयुग का आगे आने वाली सदियों में चलने वाला है. जलाबेन तो ये डीवीडी लॉन्ग शेल लाइफ वाली प्रिजर्व कर रहे हैं अभी आज की टेक्नोलॉजी में, तो अच्छी ढंग से करना. ये दीपक आनंद जी करते हैं. जो आप थोड़े लोग हैं वो करो. वो सूरत का सेंटर उसका केंद्र है और यहाँ का जो सेंटर बन रहा है शैलेश जी, अपने वसंत जी, अभी और कौन बाबूजी और प्रवीण जी. नहीं, बाबूजी के साथ कौन? प्रवीण जी. प्रवीण जी ये चार के 1 2 3 और 4 ने वो चतुष्टय उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पांचवा कोई है? और शैलेश वकील यहाँ के. इतने 5 तो है ही. हैं 5 है. शैलेश वकील ने इतना लो. चलो अभी तो आपके अंदर एटलांटा तो आ ही गया ऐसा समझ लो. हाँ, एटलांटा को ऐसा मत लगे वो तो क्योंकि वो उसका सेंटर चैप्टर है ना, ऐसा कल तय हुआ है तो बनता रहेगा. तो ये डीवीडी बहुत संभाल के करना. उसमें ये सत्संग में आया कि एक दफ़े दादा भगवान का के सत्संग में पुरुषार्थ अर्थात अपनी सिंह अहिंसक सिंह स्वभाव के पुरुषार्थ के बाबत में कहा गया था. कौन सा? अहिंसक सिंह स्वभाव मैना हमेरी जो मन माइंड स्पीच बॉडी असेंबली स्वरूप जो अदर साइड है, दी अदर, उसको दी अदर तो बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो विनोद, कि उसमें भी दिक्कत आएगी तेरे को? बोलता नहीं. देखो उसमें सोच में पड़ गया. दी अदर है कि नहीं? दी अदर है कि नहीं? बोलने पर जोर से तो बोल. तो मम्मी जी को बता है. पापा जी कहाँ है? बोलते नहीं है कि नहीं? बस पक्के दी अदर है कि नहीं? तो माइंड स्पीच बॉडी जो दी अदर है वो सिंह वाली बन जाती है कि नहीं? मेरे ऊपर बनती है? नहीं, विनोद पर नहीं बनती. सिंह वाली बन जाती है. है सिंह वाली कैसे बन सिंह लायन लाइक. निधि को डराती है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं. ऐसा दिखावे में नहीं डराएगी. ठहर. और निधि डरती नहीं, वो बात अलग है. वो भी जानती है कि मैं भी हूं कुछ.
मैं भी मेरे माँ बाप की हूँ, वो जानती है ना। वो नहीं जानती है तो उसको राइट उसका नहीं देना, दिया है तूने। मम्मी जी नहीं पूछो उसको, लो उसकी रजा लो, बोल जल्दी। ये सत्संग है कि नहीं भाई, बोलो ना कि नहीं है? यही सत्संग है। बोलो जल्दी बोलो ना। अरे बोल, नहीं शर्म क्यों रखता है डॉक्टर? इसलिए तो बोल जल्दी बोल, कंको है। अरे ये मेडिकल क्वेश्चन थोड़ा है। अगर मेडिकल होता तो दिक्कत वाला हो जाता। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मम्मी उनका माँ बाप की लड़की है, उसको उनका राइट नहीं है। वो राइट तो एक्सेप्ट करता है कि नहीं? तू नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अभी तेरे पास आ गई तो तेरी हो गई। बोलने सोचा था, अभी नहीं। अभी सच्ची बता, दिल से हाथ रख, हाथ रख। अभी हाथ नहीं जाता जल्दी। हाँ। मम्मी आपका हाथ जाता है, आपकी बच्ची है सच्चा, जैसा विनोद आपका बच्चा है। अरे उससे भी ज्यादा। लो खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। तेरे से भी ज्यादा। ये मनरबा मेरे से भाभी, मेरे बच्चे से भाविनी को ज्यादा करती है। तो मैंने बोला क्या करती है तू? मैं भाविनी को डांटता हूं तब तू उसका पक्ष लेती है। तो मैं क्या करूं? मुझे यहाँ आना पड़ता है 2 साल में 4 साल में एक दफे। अगर एक महीना भर अच्छा ढंग से नहीं रहूं क्या करूं? शर्म आएगी। ये देखो देखो, बच्चा लंबा रहता है। विनोद देखो, उनसे भी दिल्ली से लंबा रहता है आपका बच्चा। दिल्ली से लंबा? आप नहीं, यहाँ नहीं रहती? दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। हाँ देखो, यहाँ नहीं रहना है। नहीं रहना है दादा। तो उसका घर का वो घर कौन संभालेगा? वो अपने आप संभालेगा। कौन जो रहते हैं वहाँ पे? कौन है? बेटा है, बहू है। बेटा कौन सा? प्रदीप तो यहाँ है। राकेश तीसरा है? एक ज्ञान दिया था ना दादा। है 3 है। अच्छा एक में है साकेत में, बड़ा अच्छा, साउथ दिल्ली में है। कितना अच्छा। आप आई थी? हाँ, वो हलू वालिया के घर से उधर गए थे हम। दादा जी, उसको कैंसर हुआ था जो आपको मालूम है? काका जी आए, सब लोग आए थे, कितने सब सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। मेरे ख्याल से जला जी भी थी। नहीं, जला जी नहीं, हेमंत बहन थी। नहीं थी? अच्छा, बड़ा मजा आ गई थी। दादा नेक्स्ट टाइम दिल्ली में आएंगे तो फिर से उधर पधार कर अपना सत्संग। पर जब विनोद और निधि आएगी तब। ये हमारी शर्त है। जरूर मंजूर है? बोल विनोद। हाँ तो मंजूर। चलो सत्संग आगे करेंगे। हाँ आज सत्संग चलने दो। तो अब यही सत्संग है कि दादा भगवान ने एक दफे फरमाया था कि सत्संग में कि पुरुषार्थ के बारे में ऐसा बताया कि वस्तु अर्थात जो वस्तु टिकाऊ है, परमानेंट है, अविनाशी है, वो हमेशा अपनी क्वालिटी जिनका नाश होता ही नहीं कभी, जैसा का सोने का सोनापन वगैरह, ये तो मेटल है ना। लेकिन वस्तु अलग बची होती है, अर्थात आत्मा। आत्मा तो एक सिग्नेचर साइन है ना, खाली साइन है। लेकिन अभी हम जाने, हम तो जान गए कि कौन है हम। तो ये माइंड स्पीच बॉडी असेंबली से परे ऐसे शुद्ध आत्मा है। क्या है? माइंड स्पीच बॉडी एसेंस से सम कंप्लीटली परे।
तो पीछे और क्या है? हाँ? क्या हो गई? हाँ? समझ गए? समझ में आता है? तो वस्तु उनके स्वभाव में हमेशा रहती है और मैं शुद्ध आत्मा हूं और अपनी क्वालिटी के साथ हूं कि मैं अनंत प्रकाशवान हूं। कैसा हूं? प्रकाश। क्योंकि शुद्ध हूं न, तो कैसा मेरा प्रकाश भी है, शुद्ध है। और प्रकाश का क्वालिटी तो होना है न। वो प्रकाश क्या चीज है? वो प्रकाश एक इतना वाट वाला है, उसकी क्वालिटी है। तो ये प्रकाश की क्वालिटी क्या है? तो उसकी क्वालिटी उसको बोलते हैं, उसको वाट बोलते हैं। ये प्रकाश को ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते। तो उसको कैसी, अगर इनफाइनाइट है तो उसको इनफाइनाइट बोला जाएगा, अनंत अर्थात बोला जाएगा। क्या? अनंत। मैं अनंत ज्ञान प्रकाश वाला हूं। ये उसकी क्वालिटी हो गई, हुई कि नहीं? ये अनंत ज्ञान प्रकाश की क्वालिटी हुई। वो क्या करती है? प्रकाश अगर है क्या चीज, वो चीज है, हाथ में आती है। ये प्रकाश कुछ हाथ में आता है, हाथ में तो नहीं आता। तो क्या काम क्या करता है? तो वस्तु दिखा देता है, वस्तु महीना ऑब्जेक्ट दिखा देता है। वो प्रकाश जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट्स को दिखा देता है, बस। वो पुरुषार्थ करता है क्या? नहीं। तो ये प्रकाश का पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ कुछ नहीं। तो क्या पुरुषार्थ? तो प्रकाश के स्वरूप में रहना, वही पुरुषार्थ। उसमें पुरुषार्थ बोला नहीं जाता। पुरुषार्थ वो क्रिया नहीं होती। क्या जलाबेन बोलो? पुरुषार्थ वो क्रिया नहीं होती। बोलो, क्रिया नहीं होती। फिर से बोलो, पुरुषार्थ क्रिया नहीं होती। वो स्वभाव। स्वभाव। जरूर क्रिया है, लेकिन वो स्वभाव क्रिया है। भाव मीन्स अपनी खुद की क्वालिटी जो प्रकाशमय है, वो प्रकाशमय के स्वरूप से होने, सरखे ही स्वरूप से होने की क्वालिटी स्वरूप रहना, और वही हो स्वरूप से होना। मैं हूँ, मैं अनंत ज्ञान प्रकाश में हूँ, बस। हम बोलना जरूर नहीं होंगे, वो प्रकाश को जरूर है। वो तो दी अदर है, चला भी जाता है, ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, उड़ भी जाता है, डिपेंडेंट भी है। ये तो इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल सोर्स, इनफाइनाइट। ये प्रकाश है तो बुद्धि प्रकाशित होती है, नहीं तो बुद्धि कैसे आई, कहां से आई? हे विनोद, बोल रहे हैं? बुद्धि कहाँ से आई? हाँ, वो उसके ऊपर लाइट पड़ता है तब तो आई। नहीं समझा? बोलता नहीं, बोल, नहीं समझता है। जो ओरिजिनल प्रकाश है अंदर, वो ओरिजिनल प्रकाश मैं हूं, जानता नहीं। वो नहीं जानने वाला मैं, वो प्रकाशित होता है। अभी नहीं समझा? वो मैं नहीं जानने वाला मैं कौन है? वो कुछ तो है कि नहीं? तो मैं विनोद हूं, है कि नहीं? अगर मैं विनोद हूं तो किस प्रकार से हूं? मैं आत्मा स्वरूप से तो है ही नहीं, तो मेरा स्वभाव से तो नहीं हूं। लेकिन वो प्रकाश इसके ऊपर पड़ता तो है जरूर। वो प्रकाश में वो प्रकाशित तो होता रहता है। इसीलिए विनोद मैं हूं इसी स्वरूप से दिखावे में आता है, और उसको फीलिंग और सब स्वरूप में आने का चांस मिलता है। मिलता है कि नहीं? क्या मिलता है? मिलता है। चांस भी नहीं मिले, मिले। ये तो बिहारी हिंदी है, भोजपुरी। नवी डिक्शनरी निकल रही है। हमारी लालू प्रसाद बिहारी। ऐसी बात है ना। आप समझे कि नहीं? नहीं मिलेगा।
मैं विनोद उसको। तो अगर विनोद को मिला चांस कि प्रकाश वाला हुआ तो वो बुद्धि प्रकाश वाली हो कि नहीं? तो प्रकाश वाली हुई तो किससे हुई कि मैं विनोद हूं। तो मैं विनोद कौन है? तो रिप्रेजेंटेटिव वो प्रकाश हुआ तो मैं हुआ तो मैं हूं, लेकिन मैं तो जानता नहीं मैं कौन हूं। तो मैं हूं तो जो है वो जानता हूं, तो मैं कौन हूं? मैं विनोद हूं। तो मैं विनोद हूं वो तो टिकने वाला नहीं है, वो तो जानता हूं, तो वो तो विनाशी हो गया। तो विनाशी में मेरी बिलीफ, जो बिलीफ स्वरूप मेरी मान्यता विनाशी में, वो मेरा एलिगेशन है, मेरा बिलीफ से इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ द परपेचुअल। हाँ, अभी है कि नहीं? बिलीफ से सपोर्ट है मेरे को, विनोद को। हाँ, सपोर्ट है कि नहीं मैं नहीं जानता। विनोद जानता है वो सपोर्ट है, मेडिकल साइंस जानता है, मेडिकल साइंस नहीं जानता। तो पीछे मुझे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, मुझे मैं तेरे को ये पूछता हूँ कब से तू माथाकुट करता है मेरे साथ? माथाकुट नहीं करता है, सिर फोड़ी। यही तो बताता हूँ। आज ये सिर फोड़ी निकाल देनी है तेरी, समझा कि नहीं? हाँ, अभी समझा? तो ये मैं विनोद हूं, वो निकल गई है, फिर भी उसकी असर कितनी भारी है, तू समझा कि नहीं? वो असर में से निकलने के लिए ये आज्ञा धर्म दिया गया है। क्या दिया गया है? क्यों आज्ञा धर्म दिया गया है? कि असर से निकाला गया तेरे को। क्यों? कि तेरे को निकालने की तेरे खुद से तो तेरी ताकत शक्ति है ही नहीं, लेकिन तेरी पुण्य इतनी अच्छी हुई कि तू आ पड़ा है मेरे पास। इतना तो हुआ, इतना तो भावना हुई, डिजायर हुई, तो आया तो अच्छा आओ भाई, डॉक्टर है, इतना तो इंटेलेक्चुअल अच्छी है कि इतनी तो भावना होती है, चलो आओ। तो चलो ज्ञान विधि में बैठे तो ज्ञान हुआ, सेपरेशन हुआ, रियलाइजेशन हुआ भी असलियत का, ओरिजिनलिटी का। होगा नहीं? रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन वो उसमें तो कृपा बनी, वो कृपा से बना। क्या बना? और सामर्थ्य से आपको आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो गई, डिस्ट्रॉय की हो गई। वो ज्ञानी पुरुष के सामर्थ्य, पावर से। डू यू अंडरस्टैंड? ही हैज गॉट ए बर्निंग फायर विद इन। कौन सा फायर है? Burning fire within. Which does not burn any body. It does not burn live body. No. Not at all. Not at all. It does not let you know even the slightest. On the contrary, it pacifies you. Hey. Pacifies you. Do you understand? You are all the time burning. Otherwise, it pacifies you. And in that pacification, you cannot realize yourself. Impossible. Even Parthaka could not realize. Your Lord wanted him to realize, oh, I'm here, you realize me, but he cannot. So what can I do? All right, grace. Then with grace, that vision was transplanted. You understand? That is how the कृपा, अगर कृपा उतारी जाती है, अब समझा? कृपा उतारी जाती है, तब रियलाइजेशन होता है। क्या होता है? यानी सेंटर्ड होते हैं आप। क्या होते हैं? कॉर्नर्ड नहीं बोलना, वो कॉर्नर्ड वर्ल्ड शब्द है, बुद्धि वाले लोगों का शब्द है। सेंटर्ड। चलो छोड़ो ने, बीच में मत लाओ कुछ। अच्छा ले दो, चलती है तो बड़ी चलती है, समझिए। नहीं, बहुत स्लो बोलता हूँ, सच्ची बताता हूँ। तो समझो। तो आज मैं विनोद हूं, वो उकल गया। रॉन्ग बिलीफ अब निकल गई, राइट बिलीफ सेट हो गई।
हाँ, सेंटर्ड हुई, सेट हुई, रियलाइजेशन हो गया, सेपरेशन हुआ, तो आपका लक्ष्य इन सेंटर्ड मीन्स लक्ष्य हुआ, ये टेस्ट भी हो गया। टेस्ट होते ही हाँ सुगर इज स्वीट, उसका एक्सपीरियंस हो गया कि मैं शुद्ध हूँ और मेरी क्वालिटीज है, विद द क्वालिटीज। एंड ये विनोद है, ये विनोद की क्वालिटी है जो मैंने मानी, ये विनोद की इंटेलेक्ट है वो मैंने मेरी मानी, ये विनोद की इगोइज्म है मैंने मेरी मानी, मेरी मान्यता, मैं ओनरशिप नो। ये विनोद का भटकता हुआ कॉन्शियसनेस है, मैं मेरा माना नहीं, मैं हूँ, मैं अपने में ही हूँ, अपनी क्वालिटी स्वरूप में रहने वाला कायम खा, ये वस्तु अपना स्वभाव में रहना पुरुषार्थ। हाँ, वस्तु का अपना स्वभाव में खुद में रहने वाला पुरुषार्थ। चित्त शुद्ध चित्त हो गया। और मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं खुद अपनी वस्तु स्वरूप हो गया, अविनाशी द्रव्य जिसको बोलते हैं, जिसको वस्तु बोलते हैं। वस्तु क्वालिटी में, स्वभाव में, जो स्वभाव गुणों वाला होता है, क्वालिटीज वाला, जो क्वालिटीज हमेशा कॉन्स्टेंटली रिजल्टेंट स्वरूप से रिजल्ट आउट होती जाती रहती है, इन स्पेट ऑफ रिजल्टिंग आउट कॉन्स्टेंटली infinitely amongst all the other objective objects in the subjective all qualities and quality modifications. Understand? Amongst all the objects and objective modifications, I am pure soul all through and all phase wise, all modification wise. Do you understand? Because of my infinite knowing and seeing power, मैं अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञेयों को जानने वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई, बोलो अनंत ज्ञेयों में जानने में परिणमित हुई, अनंत ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई, अनंत ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई, ऐसी अनंती मॉडिफिकेशंस में, अनंती मॉडिफिकेशंस में, अनंती फेजेस में, अनंती फेजेस में, अनंती अवस्थाओं में, अनंती अवस्थाओं में, अनंत पर्यायों में, अनंत पर्यायों में, मेरे ज्ञान स्वभाव से, मेरे ज्ञान स्वभाव से, ज्ञाता स्वभाव से, ज्ञाता स्वभाव से, ज्ञायक स्वभाव से, नायक स्वभाव से, मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। अभी समझे, अभी समझ गया, अच्छी बात है। अभी गलती करेगा, बोल कर रख हाथ रख, पक्का मम्मी जी को बता दे, मम्मी प्रॉमिस ले। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, उसमें तो गलती नहीं होगी। जा તો વસ્તુ એના સ્વભાવમાં રહેવું પુરુષાર્થ છે અને સ્વભાવથી પર થવું એ પ્રારબ્ધ છે। अगर मेरी मान्यता स्वरूप में हो गया और ये शैलोश ये मेरा पड़ोसी है तो भले पड़ोसी रहा, लेकिन पड़ोसी में मैं हूँ बोला तो मैं बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है। अगर मेरा ड्रामा का रोल है तो ठीक है, ड्रामा का रोल में मुझे मैं हूं बोलने में मुझे क्या दिक्कत है? विनोद बोल, तेरे को निधि का ड्रामा का रोल मिल गया, निधि को निधि का ड्रामा का रोल मिला, निधि जाने ना जाने हम नहीं जानते, चलो छोड़ दो बात, हम नहीं जानने मांगते, लेकिन हम तो जानते हैं उनको अच्छी तरह से।
तो उनको तो रखे, हम उनको अपनी पपेट डॉल तरीके से नहीं रखेंगे। जाओ अपनी धर्मपत्नी के हिसाब से। कैसी धर्मपत्नी? वो जानती नहीं ना, वो कहाँ जानती? तो वहां तक तो हमारे लिए बिचारी है, लेकिन जब जान जाएगी तब शुद्धात्मा बन जाएगी। अरे बाबा, तब मजा आएगी, तब 2 पहिए वाला कैरियट मजे से चलेगा और बच्चे आनंद करेंगे और सारा जीवन पिकनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिकनिक बन, लाइफ पिकनिक। क्या? लाइफ रिट्रीट वाला पिकनिक बन जाएगा, लाइफ लॉन्ग रिट्रीट। पीछे वसंत भाई को रिट्रीट ले जाएंगे, वो तो ड्रामेटिक रिट्रीट होगी, राम भी जाएगा। वो ड्रामेटिक क्लैरियन बजाएगा, है कि सच्चा बताता है? ड्रामेटिक नहीं, ड्रामेटिक नहीं, क्या बताता है? सब ड्रामेटिक, रिलेटिव सब ड्रामेटिक, समझे कि नहीं? लेकिन जब शुद्धात्मा दृष्टि के साथ है, तब शुद्धात्मा दृष्टि वाला सब ड्रामा ये असली ड्रामा बन जाता है, उसको ही असली ड्रामा बोलते हैं। और ये जगत वाले ड्रामा करते हैं ना, उसको नकली ड्रामा बोलते हैं। ऐसा शैलेश हमें समझाता है, शैलेश वकील करके कोई है, बोला उनको कोई मालूम नहीं है। आगे इधर है। દાદાજી ચંદનવાળા નાટકમાં બી છેલ્લે આવ્યું કે નાટકીય ભગવાન આયા, છેલ્લી પંક્તિમાં આવ્યું। ऐसा मजा आती है। भगवान भी नाटकीय होता है। शुद्धात्मा पद में मजा आती है नहीं, तब मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? 100% लगता है। फिर क्या लगता है? हाँ दादा, क्या बताऊं? ड्रामेटिक इन द सेंस कि इनसाइड नॉलेज दैट आई एम नॉट द वन दैट इज डूइंग। बताया ने, वस्तु उसका स्वभाव में ही हमेशा होती ही है। क्यों कि प्रकृति जो माइंड स्पीच बॉडी असेंबली है, उनकी क्वालिटी से है वो टेम्पर वाली, वो क्वालिटी में वो साथे रहने के होते हुए भी वो क्वालिटी में नहीं है, वो क्वालिटी के साथ में है। वो क्वालिटी वाली बन नहीं जाती। अभी नहीं समझा? नहीं समझा? अपनी क्वालिटी के साथ वो बनती नहीं, उसमें उसके साथ रहती है जरूर। आप समझे कि नहीं? उसके कारण वो मन वचन का असेंबली डिवाइन और नॉर्मल बन जाती है। क्या बताया? डिवाइन और मन वचन का है कि प्रत्येक एक्टिविटी, माइंड, स्पीच और बॉडी की हर एक एक्टिविटी जो बनती रहती है, उनके पश्चात वो डिवाइन एक्टिविटी बनती रहती है। जितनी जितनी मेरी जो क्वालिटी हमारे में ही रिजल्टेंट होती रहती, बनती रहती है। आप समझा? इतने ही प्रोसेस के दरमियान जितना प्रोसेस में इंटरमिंगलिंग अगर तो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ अगर रहा तो गड़बड़ हुई। अगर ड्रामा में कुछ भूल गया, किस प्रॉम्प्टिंग करना पड़ा, तो जरा ड्रामा में थड़क हो गया। समझ गया? सब जूते मारेंगे। अभी समझा क्या नहीं? तो पूरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा कि मतलब अपने स्वभाव में आने से प्रकृति विल बिकम नॉर्मल बाय इटसेल्फ, न बाय इटसेल्फ। अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ वो आज्ञा धर्म से बनता है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट में विनोद हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट में शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रथम 2 आज्ञा दी गई है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। भाई बताया गया था आपको,
लेकिन उसकी महत्व नहीं समझ पाई आपको, इसलिए सभी को बताई तो जाती है, लेकिन ज्यादा उसके पास स्ट्रेस नहीं दिया जाता, इसलिए वो इसकी महत्व नहीं पकड़ पाते लोग। उसको बहुत खूब महत्व देनी चाहिए, खूब खूब। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अभी हम तो प्रथम आज्ञा पर ही स्ट्रेस देंगे 100%। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट ही मैं विनोद हूँ, सर्वप्रथम मैं विनोद हूँ, ऐसा था ना। और बाय व्यवहार दृष्टि से मैं विनोद हूँ, वो दोनों में फर्क है। बोल तो पीछे कितना फर्क हो गया, एक ऑपोजिट, डायग्नेटिकली ऑपोजिट हुआ कि नहीं? बोलने नहीं, खत्म हो गई बात। तो ड्रामा हो गए कि नहीं? हाँ, व्यवहार दृष्टि से मैं विनोद हूँ, वो ड्रामा वाला हो गया। मैं विनोद हूँ तो बस वो ड्रामा में रहेगा तो गड़बड़ सड़बड़ वाला बन जाएगा। अगर व्यवहार दृष्टि से मैं विनोद हूँ, बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास ड्रामा करेगा। क्या वंडरफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या नहीं, क्या क्या पदें निकलेंगी, क्या रत्नाएं निकलेंगी। हाँ, आप समझे कि नहीं? आपकी डॉक्टरी क्या निकलेगी, आपकी सेवाएं क्या बनेगी, मैं बताता हूँ। आप नहीं करेंगे कुछ, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्वभाव में रहेंगे ना शुद्धात्मा की, और आप पेशेंट में भी वही देखेंगे ना, आप निधि में वो देखते रहेंगे ना, नहीं समझे? उससे आपका निधि के साथ का व्यवहार कुछ बदलाव नहीं आएगा, आएगा वो ड्रामेटिक बनेगा। देखो, अगर निधि को रियलाइज होता है तो निधि का आपके साथ का व्यवहार ड्रामेटिक बनेगा, और व्यवहार में बदलाव नहीं आता। बदलाव कौन से आता है? उसमें चिकटपना वाला भाग में सब बदलाव आ जाता है। क्या आता है? कौन सा? चिकटपना। डू यू अंडरस्टैंड? दोनों के बीच में चिकटपना वाला भाग है कि नहीं? बोलने इनफ्लेक्सिबिलिटी वाला, चिकटपना में बोलता हूँ। आप अपने नहीं छोड़ते, वो अपनी नहीं छोड़ती। वो अपनी मेरी पापा मम्मी की पकड़ रखती है, आप आपके पापा मम्मी के पकड़ रखते हैं। ये हंसते क्यों? नहीं समझते? और आप आपकी भी पकड़ रखते हैं, वो उनकी भी पकड़ रखती है, और बोलती क्या है, मेरे बच्चे हैं, डालती है बच्चे पर। હું તો એ થઈ જઉં છું તે વખતે મજા હું તો રોજ જટ લઈને ઓન ધી મોમેન્ટ બધું થઈ જાય છે મારા, સાડી બાડી બધું બદલાઈ જાય છે, સાચું કહું છું લ્યો, બધા રોલ એની ટાઈમ એની રોજ આઈ ટેલ યુ रियली क्या नहीं बन पाता है, क्या क्या आप नहीं समझ पाते। अवस्था में तो क्या क्या नहीं बनता साहब, बनता है अवस्था में। तो भूपत क्या बोले, क्या क्या नहीं बनता अवस्था में साहब? दीपकानंद जी नहीं समझाते। लेकिन आपको कैसा बनेगा? नहीं बनता, बाकी बहुत कुछ बनता है। इसलिए तो अनुभव से निकले। और दादाजी ऐसा है ना, ये भाई बोलते हैं लेकिन उनमें भी ऐसी प्रकृति है। तो जानते हैं ये शरीर ऐसा ऐसा सादा शरीर नहीं है। रखो, लगाओ लगाओ, समझे? भाई ये छोटा सा कागज दिया लेकिन बहुत बड़ा दे दिया मुझे तो। हम क्या करें, सिलवा वाले लोग हैं। बड़ा भारी कागज दे दिया मुझे, मैं क्या करूं, मैं इतना भारी दिया कि उसके पीछे एक पद बोलना पड़े, ऐसा हो गया। एक छोटा सा संयम परिणाम। कौन सा? संयम परिणाम। भूपत, संयम परिणाम कौन सा? चले? और थोड़ा मैं पानी भी पीऊं, चलेगा विनोद? चला भाई, ये पूरा हो गया साहब, मैं समझिए पूरा हो गया। हाँ, एकदम पूरा। ठीक है साहब।